Hello, audience and friends. This is the IIT Guwahati Sahyog podcast with our hostel seniors. Let's firstly introduce them. The very first guest is Gurinder Bhaiya. He's doing his PhD. He's currently in fifth year from mathematics department. Am I right? Okay. He is also our service secretary. So basically, he will tell us how the PhD and the research life is here in IITs. Then he's one of my batchmates, Mallab Bakshi. He's doing his BTech in civil engineering, currently in third year. He has got an internship in Adobe, so he will tell us that how to manage the academics and the coding and all these things which are required for getting a decent internship or a placement. Then Sean Bhaiya, the what should I say, the core and the load of electronics, at least for our hostel. Uh, he has got a PPO, so he will tell us that how to get into the electronics core, which is on the boom, how to get into the semiconductors and all these stuff, analog electronics and all these things. And then Priyanshu Bhaiya, my coding club senior, my hostel senior. I have worked with him, and he's doing his BTech in electronics and electrical engineering. Currently, he's in fourth year. By the way, Sean Bhaiya is also in fourth year. He has also got the PPO and the SD role, I guess. Yeah. So he will tell us that how the SD role, how we can approach the SD role. Those who are interested in the software development and all these things. Then Divyansh Bhaiya, who is in first year MBA. I guess it's a very new course. So he will tell us that how this course here is in IIT. Okay, then one of my best friends, I would say, and my branchmate, Saqib, he is doing BTech in chemical engineering, currently in third year. And his perspective is that he want to pursue higher studies in chemical engineering, and he has a very great CPI. So we will ask him how to manage this much high CPI, and then he's very active in sports and other stuff also. So we will ask him. Let's see. Okay. So we will try to actually explore the whole fields of IITs. Okay. So the very first thing, जिस वजह से हम IIT में आते हैं, that is academics. जो करियर बनाता है, जो स्ट्रेस देता है, सब कुछ, everything is related to academics, I guess. ठीक है, उसी से ही सब कुछ आगे हर कंपनी के एक CPI कट होता है. तो अगेन गुरिंदर भी हमें बताएंगे कि PhDs में कैसी लाइफ है, और भैया बताएंगे कि MBAs में कैसा है. ऐसा होता है कि जेई लाइफ या जो दूसरे कॉलेजेस की लाइफ्स हैं, गुरिंदर भैया पहले दूसरे कॉलेज में होंगे, दिव्यांश भैया भी, तो वहाँ की एकेडमिक्स में और यहाँ की एकेडमिक्स में क्या डिफरेंस है, या हम पहले स्कूल लाइफ में कैसे पढ़ाई करते थे और कॉलेज में कैसे करते हैं, तो क्या डिफरेंस है, और एक रोड मैप भी अपने जूनियर्स के लिए कि कैसे एकेडमिक्स को अप्रोच करें. तो भैया, गुरिंदर भैया. I'm in PhD fifth year, so I started with very enthusiasm, but with years it went off. It started fading. शुरू में मैं बहुत मोटिवेशन से आया था, मुझे लगता था कि मैं पता नहीं क्या ही कर दूंगा, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा जब रिसर्च में ज़्यादा घुसते हैं तो जितना ज़्यादा हमें पता चलता जाता है, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को बारे में जानते जाते हैं, उससे ज़्यादा हमें पता चलता है कि हमें क्या नहीं आता है. तो जो हमारा नॉलेज है उसका सर्कल बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो जो हमें नहीं मालूम उसका भी सर्कल ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से बढ़ रहा है. तो वो जो चीज़ है वो एक जो हमारे अंदर एक ऐसी भावना लेके आती है कि शायद हम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं. तो वो एक हमें अंडर कॉन्फिडेंट रखती है चीज़, लेकिन विद टाइम जो हैं चीज़ें वो ठीक होती जाती हैं. जितना आप टाइम देते हैं चीज़ों में उतना वो पे बैक करती हैं. ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर आप मेहनत कर रहे हो तो पे बैक नहीं करेगी, तो पे बैक हमेशा होता है. तो जब मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर थोड़ा ठीक ठीक गया, थर्ड ईयर बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है PhD में. तो थर्ड ईयर में बेसिकली आप एक डायरेक्शन में चले जाते हो, तो थर्ड ईयर ही डिसाइड करेगा कि आप सही जाओगे या गलत जाओगे. तो एक बार थर्ड ईयर क्रॉस होता है फिर सही है, फिर सॉर्टेड है, उससे उसके आगे एक डायरेक्शन तय है, फिर आपको ज़्यादा. तो भैया किसी PhD जो भी जूनियर, लेट्स से ही इज़ ज्वाइनिंग द कॉलेज, या वो फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में है, सो आपकी सजेशन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ सजेशन क्या रहेगा कि ये कर लो PhD में, सो दैट योर लाइफ विल बी ईजियर. मुझे लगता है कि
हमेशा दिमाग में ये क्लियर रहना चाहिए कि आप यहाँ आए तो पीएचडी करनी है, हम्म, तो पीएचडी ही करनी है। तो लेकिन सिर्फ पीएचडी नहीं की जा सकती है। तो उसके लिए मैं इससे पहले जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में था, तो मैं स्पोर्ट्स में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। एक्स्ट्रा करिकुलम बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आईआईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है कि आप, अगर आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, अपने आसपास के लोगों को जब देखते हो कि वो कोई दौड़ने जा रहा है, कोई बैडमिंटन खेलने जा रहा है, तो वो अंदर से खुद एक फीलिंग आती है कि आपको भी करना पड़ेगा। मैं पोइट्री बहुत पहले से लिखता आया हूँ, लेकिन कभी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जैसा आईआईटी में मिला है। तो वो उससे एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। मुझे याद है जब मैंने सबसे पहली एक पोएम सबमिट की थी लिटरेचर सोसाइटी में, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी। हम्म, तो वो है, लेकिन धीरे धीरे मैं करता गया और फिर वो एक्सेप्ट होने लगी, तो मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमेशा ये याद रखना है कि आप पीएचडी करने आए हो, लेकिन आप एक्स्ट्रा करिकुलम में भी ज़्यादा जाना चाहिए। उससे उससे क्या है, माइंड फ्रेश रहता है। भैया के बारे में बहुत कुछ सुना है, मतलब क्योंकि मैं मेरा इतना जोन है नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैं केमिकल सही है। इंजीनियरिंग से हूँ। सो भैया, हाउ यू मैनेज योर एकेडमिक्स? क्योंकि मेरे बैचमेट्स एग्जांपल देते हैं कि शॉन भैया जैसे एकेडमिक लाइफ चाहिए। सो हाउ यू मैनेज योर एकेडमिक्स, और क्या सजेशन रहेगी अपने जूनियर्स को? Well, starting off as such, when you want to set up a career in any domain, electronics या hardware, उसका foundation बहुत ज़्यादा important होता है. Like जब तुम first year में आते हो in college, initially you are exposed to so many different clubs, so many different fields. बहुत सारी चीज़ तुम explore करने का तुमको मौका मिलता है. वही IIT का सबसे अच्छा चीज़ रहता है. तो इसमें एज सच मैं यहाँ बीटेक और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्वाइन किया था. सो नेचुरली बचपन से मेरे को एक पैशन था. जब घर पे ऐसा कोई बात चलता है, इवन माय पेरेंट्स आर आल्सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, तो उसमें घर पे जब बिजली चला जाता है तो मैं सोचता हूँ कि बिजली क्यों चला जाता है. ऐसा ही एक क्रिएटिव सोच से मैं आगे बढ़ा, और यहाँ आने के बाद मुझे वो क्रिएटिव सोच का मतलब आगे जाने का रास्ता मिला इधर. So how to manage your academics is, especially in electronics, तुमको ऐसा डिपार्टमेंट का नाम लेने का जरूरत नहीं है, बट हर डिपार्टमेंट में ऐसा प्रोफेसर रहता है जिसका क्लास ना एक आध प्रोफेसर होता है जिसके लिए तुम क्लास अटेंडेंस ना भी हो जाए फिर भी तुम क्लास चले जाते हो, और कुछ प्रोफेसर होते हैं जो बस आते हैं और स्लाइड स्क्रॉल करता है और उसके लिए तुम बस अटेंडेंस के लिए जाते हो. सो हाँ, कोर्स का इंटरेस्ट तो मोस्टली खुद का मतलब खुद का पैशन और खुद का मीन खुद का एक्सप्लोरेशन से डिपेंडेंट है. बट हाँ, द प्रोफेसर्स आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल. तो उसके लिए मैंने बस एज सच मैंने एकेडमिक्स पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया इनिशियली जब आने में. बस धीरे धीरे मुझे पता चला कि या अगर बाकी लोग से आगे रहना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बस तुम अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स को जा सकते हो. बाकी लोग भी डेवलप कर सकते हैं. तो या रेस में थोड़ा आगे रहना है तो मेहनत करना पड़ेगा. तो वैसा मुझे Definitely. पता चला. और हाँ, तो कोर्सेज में एज सच जैसा मतलब ने कहा था, एज सच ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तुम एक हाथ मतलब थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करते हो तो एक दो हफ्ते में आराम से सारे निकल जाता है. बिकॉज मुझे सब में यही लगा था कि अगर हम तो जेई करके आए हैं जिसमें हम हर दिन 5-6 घंटा का मेहनत करता था, एंड मुझे पता था कि अगर 5-6 घंटा मेहनत हर दिन इधर करे तो या ऑब्वियसली बहुत अच्छा 10-10 सीपीआई आएगा. बट उसका भी फायदा नहीं रहता है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आईआईटी गुवाहाटी में नया है, हम्म, थर्ड बैच है, बट आई इन प्रीवियस आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे आर इन द टॉप 2, हम्म, 5 स्कूल्स में टॉप 2 में. तो आईआईटी के लिए नया नहीं है हम्म. एमबीए. गुवाहाटी में नया? हाँ, गुवाहाटी में नया, बट ओवरऑल. दूसरा, एमबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है. हम्म, लाइक मोस्ट ऑफ आवर क्लासमेट है वर्क एक्स पहले प्रीवियसली काम करके आए. तो अब एजुकेशन छूट जाती है उनसे, नहीं होता भाई, काम करने के बाद वो फ्लो नहीं आता है उनका. हम्म, तो बट इतना हेक्टिक नहीं होता एमबीए. मतलब सब्जेक्ट इजी है हम्म, दो, पर देयर आर मल्टीपल डोमेन. जैसे इनकी सबकी डोमेन एक स्पेसिफिक डोमेन है. हम्म, कोडिंग दे आर डूइंग फॉर देयर बेनिफिट एंड टू बूस्ट अप देयर करियर इन डिफरेंट फील्ड. बट एमबीए में लोग कंफ्यूज होते हैं कि बस लोगों को लगता है एमबीए से कि डायरेक्ट हम आएंगे और हाइक के लिए आते हैं. एमबीए में लोग स्विच करने के लिए आते हैं करियर. टेक वाले भी हैं, मैक्सिमम बहुत लोग टेक से होते हैं जो एमबीए करने आते हैं. तो अब वो कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें उस समय लगता है कि एमबीए से भी ग्रोथ हो जाएगी.
ऐसा नहीं होता है सिर्फ कि एमबीए से ग्रोथ। पहले आपको एमबीए उनको करना चाहिए जिनको श्योर हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है। आप फील्ड चेंज कर रहे हो, आप जॉब स्विच नहीं कर रहे हो, आप फील्ड आप चेंज कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए आप क्या करना चाहते हो। आप मार्केटिंग एचआर टेक से बहुत अलग चीज़ है, कोई लेना देना नहीं है उनका। दूसरा एकेडमिक्स कुछ हार्ड नहीं होता एमबीए का, मतलब यहाँ पे ट्राइमेस्टर है तो हमारा थोड़ा टर्म वाइज होता है तो थोड़ा हेक्टिक होता है कि क्विज टर्म एक साथ सारे प्रोजेक्ट, मतलब 1.5 मंथ में आपका टर्म खत्म, एक सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट खत्म, थोड़ा हेक्टिक होता है। बट इन द एंड आपको एमबीए एज अ स्टूडेंट आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना, आपको इन द एंड क्लाइंट डीलिंग पे जाना है, आपको फ्रंट एंड जॉब चाहिए, तो आपको फोकस करना है कि आप सोशलाइज कैसे करोगे, आप लोग कनेक्शन कैसे बनाओगे, बिल्ड करोगे, उस पर मेन फोकस होना चाहिए इंसान का। और दूसरा है आईआईटी है तो को करिकुलर तो ज़रूरी है अब यहाँ आए हो तो। और अगर आपने पूछा कि आप प्रीवियस कॉलेज से कैसे डिफरेंस है, आईआईटी में आपको एमबीए से रिलेटेड कोर्स तो हैं, बट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप दूसरे कोर्सेज में ऑडिट करके जा सकते हो, जो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है आज के डेट में। कि एमबीए हमें सिर्फ क्या पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग एचआर अकाउंट्स ये सब। अगर किसी को कोडिंग में जाना है या किसी को डेटा एनालिसिस में जाना है तो वो उस फील्ड के भी सब्जेक्ट ऑडिट में पढ़ सकता है, जो बाकी कॉलेज नहीं करते हैं, इवन द आईएम्स। तो ये बेनिफिट होता है आईआईटी में एमबीए परस्यू करने में। डिफरेंट डोमेन्स के सब्जेक्ट्स Yeah. पढ़ सकते हैं। साकिब, he was into branch change but he didn't change his branch. इसकी ब्रांचेस हो सकती थी बट इसने करी नहीं। सो ही वाज लाइक कि ठीक है केमिकल इंजीनियरिंग में ही रहते हैं, बिकॉज ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन टू मैथमेटिक्स, बट इसको मैथमेटिक्स नहीं मिल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही थी। सो अभी कैसा चल रहा है अकेडमिक्स एंड हाउ वाज इनटू इन फर्स्ट ईयर, उसके बाद कैसे, और अभी क्या कर रहे हैं, क्या सजेशन होंगे अपने जूनियर्स को? क्या यहाँ आया, फिर यहाँ पे सोचा चलो ठीक है ब्रांच चेंज का ऑप्शन देखते हैं। ब्रांच चेंज हो गई तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच चेंज भरा मैंने सीएससी एमएनसी, बस इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ही छोड़ दिया। और बट अनफॉर्चुनेटली मेरी ब्रांच चेंज हो रही थी ट्रिपल ई में, लेकिन फिर ठीक है वो भी एक अच्छा डिसीजन साबित हुआ सेकेंड सेमेस्टर तक। फिर मेरा आया थर्ड सेमेस्टर जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेमेस्टर्स है। उसमें मुझे एक ऐसा प्रॉफ मिले, प्रोफेसर दीपांकर बंदोपाध्याय सर, हमारे हीट ट्रांसफर के प्रॉफ है, वो मिले। उनसे बात करके फिर पता चला कि केमिकल इंजीनियरिंग के कितने और ज़्यादा फ़ायदा है और क्या मतलब इस ब्रांच की खासियत है। उन्होंने पूरा एक लेक्चर लिया था उस पर। फिर वहाँ से मुझे जो पहले से इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में और थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ भी, क्योंकि मैंने एज अ ब्रांच इसे चूज़ किया था, इसे भरा था अपने काउंसलिंग में, तो मुझे ये तो था कि इसमें मुझे मज़ा आने वाला है। तो सर ने जब मुझे और बताया इसके बारे में, इसके और एस्पेक्ट्स, तो मुझे फिर लगा कि चलो ठीक है मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया लाइफ में ब्रांच चेंज ना करके। और उससे मेरे एक दोस्त का फ़ायदा हो गया जो इसी अपने हॉस्टल का ही है, उसकी ब्रांच चेंज हो गई। सो दिस वाज अबाउट, ठीक है, दिस वाज अबाउट एकेडमिक्स। अभी कॉलेज लाइफ की एक बेंचमार्क मूवी है बहुत लेटेस्ट, छिछोरे। उसमें आई गेस कि सिर्फ स्पोर्ट्स वाला एलिमेंट दिखाया हुआ है कि बस स्पोर्ट्स, जनरल चैंपियनशिप यहाँ भी होती है, इतना मैं बता देता हूँ ऑडियंस को, ठीक है। सो हाउ इज़ हॉस्टल लाइफ? वैसी ही है छिछोरे जैसी, उससे बेटर है, उससे बुरी है, क्या है हॉस्टल लाइफ है क्या? हाउ विल यू डिफाइन हॉस्टल लाइफ? छिछोरे से तो बेटर है, क्योंकि उसमें Better है? सिर्फ एक एस्पेक्ट ही दिखाया गया लाइफ जीने का, बाकी और कई एस्पेक्ट उसमें नहीं दिखाए गए। जैसे कि ठीक है मूवीज में क्या है कि वहाँ पे उन्होंने बता दिया इतनी ज़्यादा ये चीज़ें हो रही, प्लानिंग हो रही है पूरी चैंपियनशिप जीतने के लिए, ये लिखा जा रहा है, लेकिन उसको एक्चुअल लाइफ में जब एज अ फील करना, वो चीज़ें ज़्यादा मतलब फिर और मज़ा आता है। और भी कई चीज़ें जैसे वहाँ पे यहाँ पे मतलब ऐसी चीजें अपने हॉस्टल्स में होती है जो हम बता भी नहीं सकते और मूवीज में दिखा भी नहीं सकते, वो चीजें ज्यादा बेटर बनाती है हॉस्टल लाइफ। तो हॉस्टल लाइफ तो बेटर है ऑब्वियसली, बहुत बेटर है हॉस्टल लाइफ, छिछोरे से ही बेटर है? छिछोरे से बहुत बेटर है। अरे सही है, और सबसे ज्यादा मजा आता है उस वक्त जब हमारी जनरल चैंपियनशिप चल चल रही रही है होती है। तब। कैसे मतलब जो है दो हॉस्टल्स के बीच में पूरा एकदम ऐसा वॉर की तरह छिड़ी हुई है, वहां जा रहे हैं ग्राउंड पे जा रहे हैं तो ये वाला हॉस्टल इस हॉस्टल पे चढ़ रहा है, ये हॉस्टल इस हॉस्टल पे चढ़ रहा है, तो वो सारी चीजें। और फिर उसके बाद इलेक्शन के समय सब रीयूनाइट होना, ये सबसे ज्यादा मजा आता है। जो दुश्मन थे वो सब एक साथ आ हाँ, गए। जो दुश्मन थे वो सब एक साथ हो गए। आई वुड से या उसने कहा सारे एस्पेक्ट्स तो कवर नहीं हुए थे मूवी में, बट मूवी में बहुत फ्लैशी बनाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा कुछ दिखा देते हैं। सो आई गेस उतना कुछ तो नहीं होता हॉस्टल में, बट इट्स लाइक ओवरऑल इट्स मच बेटर। लाइक दोस्तों से रहते हैं, जिनके साथ पढ़ते हैं उन्हीं के साथ रहते हैं, तो ऐसा कभी होता नहीं। लाइक स्कूल लाइफ में स्कूल के दोस्त स्कूल पे रहते हैं, घर के दोस्त घर पे रहते हैं, यहाँ जिनके साथ क्लास करने जा रहे हैं वो यहीं है, रात को 12 बजे किसी से असाइनमेंट मांगना हो बगल में रूम है। सो ये सब
हॉस्टल लाइफ को बहुत लाइवली बनाता है। फेस्टिव सीजन हो गया, मेस का खाने का बुराई करना हो, या कहीं खाने जाना हो बाहर, मूवी देखने या घूमने। सो लाइक फ्रेंड्स फॉर लाइफ टाइम आई गेस ऐसे बनते हैं। हॉस्टल एंड अभी अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो अपना फर्स्ट ईयर, तो थोड़ी बहुत होम सिकनेस आई होगी जब घर से दूर आते हैं फर्स्ट तो। ईयर तो हमारा ऑनलाइन हुआ था, so सॉरी सही है। वहाँ तो कुछ ही ऑनलाइन में ज़्यादा बात हो नहीं पाता किसी से। या जब भी आप आए थे वापस, जब आप बैक टू हॉस्टल थे, तो फिर घर वालों की याद आती है या फ्रेंड्स हाँ, वगैरह की? बहुत आती थी, बिकॉज 1 to 12 लाइक पूरा समय मैं घर ही पे रहा, कहीं कभी हॉस्टल लाइफ एक्सप्लोर नहीं किया। तो शुरू के लाइक 3-4 मंथ्स तो बहुत लाइक मुश्किल गए, क्योंकि घर से याद आता था। बहुत बार गया भी घर बीच में, बट उसके बाद आदत सा हो गया, लाइक मिस नहीं किया उतना, बिकॉज सब कुछ जो घर पे होता था फेस्टिवल से लेके सब कुछ यहाँ भी हो ही रहा था। सो मज़ा आने लगा, फिर तो आदत ही पड़ गया। तो अब कहीं भी लाइक कहीं और अकेले रहना हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब मैं 11th-12th में था तो उस समय भी एक हॉस्टल में था। उसके रूम्स ऐसे थे कि 6-7 लोग एक साथ रहते थे, और उस हॉस्टल का ऐसा था कि कोई ग्राउंड नहीं है खेलने को। ऐसे पीछे पार्किंग लॉट था, वहाँ हम लोग ऐसे 1-1 हैंड खेलते थे क्रिकेट। वो तो यहाँ भी बहुत खेलते हैं हम। हाँ, यहाँ पे भी ऐसे है, बट वहाँ कोई ग्राउंड ही नहीं था। यहाँ पे जब आया तो देखा, मतलब स्टैंडर्ड ग्राउंड से एकदम जैसे ओलंपिक्स में होता है ना, एथलेटिक ग्राउंड प्रॉपर स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ, वो सब बास्केटबॉल कोच इतने, फिर फुटबॉल। तो जब आया था मतलब लगा कि स्पोर्ट्स तो खेलना ही है। ऐसे था भी पहले से कि खेल रहा था मैं स्पोर्ट्स। फिर ऐसे फिर ऑड सेमेस्टर तो बहुत ऐसे लगता है कि बहुत टाइम लेता है। इवन से ऐसे होता है कि चला ही जाता है ड्यू टू जीसी। वही। सही है। फिर बहुत मज़ा भी आता है ऐसे इवेंट सेमेस्टर में। और मैं ऐसे जब फर्स्ट ईयर में आया था तो ऐसे सीनियर्स ने बोल दिया कि ये स्पोर्ट्स है, तो मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स में ऐसे ही चला जाता था। और फिर मतलब इंटरेस्ट ऐसे ही डेवलप होते हैं कि ऐसे घुसते हो, फिर पता चलता है कि क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। फिर उसके हिसाब से अगर प्रैक्टिस करते रहते हो तो टीम में भी ले लेते हैं। मतलब इन जनरल हमें भी लगता है कि हम बहुत अलग तरीके से देखते हैं, जैसे बीटेक वाले देखते हैं। लेकिन ये बात है कि जैसे जैसे ही जो वेकेशन, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन आने लगता है और मतलब हॉस्टल्स खाली होने लगते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब ज़्यादा बोरिंग होने लगता है, फिर हमें लगता है ओहो। तो फिर मतलब हम एक सेंटेंस में कंक्लूड करना हो तो ये है कि हॉस्टल का रंग जो है वो बीटेक वाले ही है। उनके बिना हॉस्टल नहीं है। तो जैसे अगर दिवाली की भी बात करें तो दिवाली बीटेक के बिना दिवाली नहीं है। तो मतलब हम एक ऐसे स्टेज में है जिसमें हम कुछ हल्ला गुल्ला करने से पहले सोचते हैं। तो लेकिन बीटेक जो है, मतलब वो जो हॉस्टल है उसको वो रंगीन बनाए रखते हैं। और हॉस्टल जो लाइफ है, मुझे लगता है कि जो जीसी है, अगर उसके बिना भी देखें तो जैसे एक वॉशिंग मशीन में कपड़े इधर से उधर लेके घूमते रहना, और जो हमारा जो ग्रुप है student.coming, उसमें मेल करना। तो मैंने ये नोटिस किया है कि जो हमारे पहले हॉस्टल्स थे जहाँ से मैं आया हूँ और अभी जिसमें हूँ, हम अलग अलग ब्रांच और डिपार्टमेंट होने के बाद भी कनेक्टेड हैं। एक कनेक्टेडनेस है जो हम महसूस करते हैं। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो इन सब चीज़ों की वजह से ही हैं, जो भी इंटर हॉस्टल कंपटीशन होते हैं। तो और जहाँ फिर जो भी जैसे अभी मैं सर्विसेज सेक्रेटरी हूँ, तो उसके माध्यम से और लोगों से मिलता रहता हूँ। तो हॉस्टल लाइफ जो है वो आईआईटीज में सच में बहुत अलग है। मुझे लगता है बीटेक तो हर एक कॉलेज में हो सकती है, लेकिन जो आईआईटी का हॉस्टल लाइफ है वो बहुत ही अलग नेक्स्ट लेवल है। तो आई गेस मतलब तभी मैं बोला था, गुरिंदर भैया ने वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि विदाउट जीसी हाउ इज हॉस्टल लाइफ, बिकॉज पीएचडीज आर ऑलवेज बिजी इन देयर रिसर्च इज नॉट एन ईजी थिंग। तो मुझे वो था कि एक बिना जीसी के भी एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। ओके, थैंक यू भैया। सो हमारे प्रोफेसर एक बात बोलते हैं कि हर डिपार्टमेंट के कि देर इज़ अ लाइफ, अकेडमिक लाइफ, एंड देन देर इज अ लाइफ आफ्टर 5 जो बोलते हैं। ठीक है, लेट्स काउंट एवरीथिंग इन दैट एक्स्ट्रा करिकुलर में, कि अकेडमिक्स के अलावा जो भी हम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग हो सकती है, लिटरेचर हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, एनीथिंग, हाउ इट हेल्प्स इन योर करियर।
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये सब करियर में हेल्प करता नहीं है. इन एट द एंड एवरीवन वांट टू गेट देयर करियर सेटल्ड, प्लेसमेंट चाहिए या जो भी है. सो हाउ दिस क्लब्स, बहुत सारे क्लब्स हैं IITs के अंदर, मुझे लगता है हर चीज़ के लिए क्लब है, ठीक है. सो इन क्लब्स में एंगेज होना चाहिए. एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है, लिटरेचर है, स्पोर्ट्स है, हाउ टू गेट एंगेज्ड, ठीक है. कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्या वर्थलेस है या फिर इनका बहुत वर्थ है आपके करियर में. क्योंकि यहाँ पर 4th ईयर से ऑलरेडी प्लेसमेंट आ चुकी है, मतलब के पास इंटर्नशिप है, ही हैज़ अ वेरी डिसेंट CPI, भैया रिसर्च कर रहे हैं, एंड MBA वाले भी ऑलरेडी अपने करियर से आ चुके हैं. सो एक्स्ट्रा करिकुलर क्या रोल है किसी के भी करियर में या आपके करियर में. तो जैसे हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो एक एक प्रॉब्लम हमारे पास होता है, तो हम उस पर काम करते हैं. तो मतलब जितने हमारे पास नॉन मेथड हैं वो हम सब लगा लेते हैं, लेकिन मान लो रिजल्ट नहीं आया, तो अगर आप उसी डायरेक्शन में फिर से चले जाओगे, नहीं आएगा, कैसे भी करके नहीं आएगा वो. तो उसके लिए एक इस्केप ज़रूरी है. तो जो एक्स्ट्रा करिकुलम है वो एक इस्केप देता है, लेकिन वो ऐसा इस्केप भी नहीं है कि आप पूरा डिस्कनेक्ट हो जाओगे. आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए जा रहे हो, फिर वापस उसी पे आओगे. लेकिन जब आप आओगे तो एक फ्रेश थिंकिंग के साथ आओगे. तो और अगर आप मान लो 5 किलोमीटर भाग के आओगे, तो उस टाइम को आप सब कुछ भूल चुके होगे. तो जब आप दोबारा उसी चीज़ पे बैठोगे तो रिकॉल करोगे, तो कुछ अलग नज़रिए से देखोगे उसको. तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है. तो जब ऐसे मैं उसको दोबारा विजिट करता हूँ सेम प्रॉब्लम को, तो वो बहुत अलग नज़रिए से देखता हूँ. और मैं लिटरेचर सोसाइटी में भी जाता हूँ, तो जैसे वो एक स्टोरी पे डिस्कशन करते हैं, एक स्टोरी का टाइटल होता है, वो स्टोरी पढ़ के आते हैं सब, और उस पे सब अपने अपने व्यूज़ देते हैं. तो उसको जब मैं बाकियों को सुनता हूँ, मेरा व्यू तो फिक्स्ड है, मुझे पता है कि क्या है, लेकिन जब दूसरों के व्यू सुनता हूँ तो पता चलता है कि जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको कितने अलग अलग नज़रिए से पढ़ सकते हैं. तो यहाँ आकर क्लब्स में मैं सिर्फ लिटरेचर सोसाइटी से ही एसोसिएटेड हूँ, लेकिन मैंने स्विमिंग यहीं आकर सीखी. और मैं कभी लीन बॉडी हूँ, लेकिन कभी भी दौड़ता नहीं था. लेकिन यहाँ आसपास, और मुझे ऐसा लगता था पहले कि मैं पतला हूँ तो मुझे क्यों दौड़ने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ आके मुझे लगा कि ज़रूरत है. तो यहाँ आकर बहुत कुछ मैंने शुरू किया है, और वो फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है, और लॉन्ग रन में फ़ायदेमंद. The key to managing extracurriculars is time management. You need to devote the ample amount of time that is required to हर एक domain. ऐसा नहीं है कि तुम अगर 5 बजे के बाद क्लास से आ जाए तो चलो मैं पिक आउट कर लेता हूँ, 3-4 क्लब विजिट करता हूँ, फिर मैं जाके स्पोर्ट्स खेलता हूँ, फिर वापस आके पढ़ाई कर लेता हूँ. नहीं, वो तो नहीं होता है. मैं ऐसा भी लोगों को देख चुका हूँ जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने का कोशिश रहता है, बट इन दैट केस दे टेंड टू लूज ट्रैक ऑफ टाइम and then they're not able to pick back on their academics. तो मैं यही करता था कि I always used to keep my extracurriculars limited to my domain. Like मैं sports में बैडमिंटन या चेस वो करता हूँ, and as far as academic related extracurriculars मैं hardware clubs में more or less involved था, electronics, robotics, aero modeling वगैरह में. So इसमें मेरे को काफ़ी essential लगा था, because as far as my domain is concerned, a career in hardware is impossible without actually working with hardware. और बाकी कोई सा भी डोमेन में ये भी हो सकता है कि रूम से बैठ के काम कर सकते हो, बट हार्डवेयर में वैसा नहीं है. तुमको एक्चुअली चीज़ें लेके आना पड़ता है, फिर उधर क्लब्स में बैठ के यू हैव एक्सेस टू हार्डवेयर which you would not have otherwise access to. नहीं तो तुमको डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, एंड डिपार्टमेंट इज नॉट ऑलवेज एक्सेसिबल 24/7. क्लब्स में हमको फ्रीडम रहता है कि तुम कोई सा भी मटेरियल्स को कुछ कैसा भी यूज़ करो, कुछ भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट करो. तो वो काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे हार्डवेयर में एक्चुअली क्लब से मिला था. एंड एज फार एज स्पोर्ट्स गोज, वो भी मैं काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट लगा स्पोर्ट्स एज सच. बहुत लोग यही सोचता है कि अरे चलो यार, अब तो IIT में आ गया, अब तो स्पोर्ट्स ही क्यों खेलना, मैं बस पढ़ाई ये कर लूँगा और बस रूम पे रहता रह लूँगा मूवी देखते. बट एज सच दैट इज ऑल्सो नॉट बेनिफिशियल. मेरे स्पोर्ट्स में मेरे को हैज ऑल्सो टॉट मी अ लॉट, लाइक हाउ टू मैनेज थिंग्स अंडर प्रेशर. बिकॉज जब तुम कोई एक मैच में खेलते हो, एंड व्हेन यू आर प्लेइंग द डिसाइडिंग सेट ऑफ अ बैडमिंटन मैच, जब बाकी हॉस्टल वाले सब तुम्हारे सामने हो एंड एवरीवन इज प्रेशराइजिंग यू, so you have you have to know how to perform under pressure, when you're put in pressure situations, kaisa decisions lena hai. And sports also teaches you the value of teamwork. Even though badminton is an individual sport, yahan like IIT Guwahati mein it's played in teams of 5
तो हमारा ओवरऑल टीम भी स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसीजंस लेना पड़ता है कि हु डू आई सेंड फॉर द फर्स्ट मैच, हु डू आई सेंड फॉर द सेकंड मैच। तो हाँ, स्पोर्ट्स भी तुमको काफ़ी कुछ सिखाता है, इवन दो यू माइट नॉट फील कि स्पोर्ट्स इज नॉट डेवलपिंग योर टेक्निकल स्किल्स, बट स्पोर्ट्स बहुत कुछ तुमको सिखाता है इवन दो यू डोंट एक्चुअली रियलाइज इट। तो स्पोर्ट्स का बहुत वैल्यू रहता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है बट इनडायरेक्टली बहुत indirect इम्पैक्ट है, impact तो बहुत काफी। ज़्यादा है। आई गेस हाँ, कंट्रीब्यूट तो बहुत करता है बिकॉज एक्स्ट्रा करिकुलर से ही हम लोग टीम वर्क सीखते हैं। बिकॉज कभी कोई एकेडमिक्स में कोई असाइनमेंट सब लोग साथ बैठ के करेंगे नहीं, तो ये करेगा बाकी लोग उसका छापेंगे। सो ऐसा होता है। बट क्लब्स में बैठ के लेट नाइट कल सुबह तक कंप्लीट करना है इसको, एंड बहुत लाइक कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं। सो इट्स अ हेल्दी इन्वायरमेंट, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सिखाने को मिलता है, एंड लाइक सीनियर्स भी बहुत हेल्पिंग हैं, एंड ओवरऑल कभी ऐसा हिंड्रेंस नहीं लगा एकेडमिक्स में। लाइक एक दिन पहले सोचता हूँ पहले से पढ़ा रहता तो बेटर होता, लेकिन उसके बाद टेस्ट हो जाता है तो हो गया जैसा होना था, पढ़ के भी कुछ नहीं आने वाला था। सो ये रहता है, एंड इट्स ट्रू लाइक 2-3 years डाउन द लाइन तुम ये नहीं सोचोगे तुम्हारा CPI कॉलेज से पास होने के बाद 8.29 8.5 होता तो अच्छा है। you'll cherish the moments you had in life, like जो रात भर बैठ के काम किए थे, जो फ्रेंड्स के साथ लाइक सीनियर्स के रूम में पटाखे फोड़े हैं, ऐसा कुछ। सो ये सब याद रहेगा, एंड लाइक लॉन्ग रन में जो साथ रहे उसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो ओके, थैंक यू भैया। देखो एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ। एक तो स्ट्रेस बस्टर जैसे उन्होंने कहा बहुत बड़ी चीज़ होती है। सेकंड हमको लगता है कि ये सेकेंडरी थिंग है, बट समटाइम्स आपको आपका पैशंस एक्स्ट्रा करिकुलर से मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपकी फील्ड एकेडमिक्स में सोचते हैं कि आप एकेडमिक्स में घुस गए तो इसी में आपकी फील्ड है, बट कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर से लोग एक करियर में बन जाते हैं। तो स्ट्रेस बस्टर है आपका टाइम, आपको हेल्थ फोकस है कि आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है। स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उनका हेल्थ अच्छा हो रहा है, किसी को चेस है तो उसको दिमाग कहीं और ज़्यादा यूज़ कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं। तो इंसान को सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस तो है ही इम्पॉर्टेंट, बट एक्स्ट्रा करिकुलर अपने जो पैशन है, जो आपको लगता है इंटरेस्ट अलग है, कोई भी हो गई, म्यूज़िक है, हमारे MBA से वन ऑफ द सिंगर भी हैं, तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो दे शुड फोकस ऑन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे MBA में भी फर्स्ट ईयर एक लड़का है अभिषेक, ही हैज़ हिज ओन इवेंट मैनेजमेंट टीम, ही इज एन इवेंट, तो वो सिंगर है बहुत बड़ा, ही प्लस इवेंट, तो वो पढ़ाई कर रहा है, ही गोज फॉर शो, हर मतलब हर वीकेंड वो जाता है, शोज करता है, एकेडमिक फोकस कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, बट वो अपना पैशन नहीं छोड़ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जो आपका पैशन है उसको भी फॉलो करो, ये नहीं कि आप हेक्टिक है तो ठीक है, थोड़ा टाइम सबके पास होता है, एवरीबॉडी हैज 24 hours, you just have to manage it. So co-curricular activities हाँ, मतलब हमारे सीनियर्स ने बार बार यही बात बोली, भैया भी हैं 4th ईयर से, कि उन्होंने आज तक नहीं देखा कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर में है वो अकेड्स में सफ़र कर रहा हो बहुत ज़्यादा। सो इनडायरेक्टली इट इज़ ऑलवेज हेल्पिंग, आपका स्ट्रेस बर्स्ट कर रहा है और बहुत सी चीज़ें आप सीख रहे हो। तो आई गेस एक्स्ट्रा करिकुलर हिंड्रेंस तो कभी नहीं होनी चाहिए। क्रक्स यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे ही, नथिंग तो एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे सब चीज़ें मैनेज करनी है। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, IITs हम आते हैं करियर बनाने के लिए, एंड करियर IIT से सब प्लेसमेंट के उस पर लेते हैं कि कैसे प्लेसमेंट लेंगे अच्छी। भैया बताइए कि PhDs में कैसे करियर आगे इवॉल्व करें, MBAs में कैसे करियर्स है, और साकिब हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली, ये बोलता है कि मुझे जाना है। सो अभी रिसर्च इंटर्नशिप जैसे तूने बताया, तो कैसे अप्रोच करें, बिकॉज मोस्टली देयर इज़ अ हाइप अराउंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कि वहाँ पे बहुत पैसा है। अब तेरा वो जॉनर नहीं है, तेरा वहाँ इंटरेस्ट नहीं है। सो हाउ यू आर अप्रोचिंग दैट केमिकल इंजीनियरिंग कोर स्टफ। वैसे ही शॉन भैया हैं जो इन्होंने SD नहीं किया, मल्लब ने ML किया, भैया ने SD किया। सो तेरा क्या अप्रोच था, हाउ यू अप्रोच दैट रिसर्च थिंग और रिसर्च इंटर्नशिप कैसे? या तो सबसे पहले अपना गोल क्लियर रखना है कि अपना एम क्या है। ठीक है, अगर तुम केमिकल डिपार्टमेंट को, तुमको कोडिंग अच्छी लगती है तो उस तरफ जाओ। अपना पहला पूरा पाथ क्लियर रखो कि आगे मुझे कब कब क्या क्या पूरी मेरी टाइमलाइन होगी, मुझे क्या करना है। तो जैसे ठीक है, मुझे रिसर्च इंटर्नशिप के लिए जाना था, तो मैंने सबसे पहला काम किया 5th सेमेस्टर में अपने एक BTP प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन होता है, वो उसका कोई क्रेडिट नहीं होता, वो सिर्फ पास Interest. फेल का कोर्स है, वो अगर किसको इंटरेस्ट है वो ले ले। तो मैंने उस पर रजिस्टर किया। उसके बाद फिर मैंने जो है प्रोफेसर से बात की, तो
उनसे LOR मांग ले, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो मिल जाता है, तुरंत मिल जाए, मतलब उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च किए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो रिसर्च इंटर्न्स को बुलाती हैं समर्स में, जैसे कई कंट्रीज है, जापान बुलाती है, कनाडा बुलाती है, ऑस्ट्रेलिया बुलाती है, जैसे उसके सबसे फेमस है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, सुना होगा, जापान की OIST, ये सारी चीज़ बुलाती है। फिर उसके बाद की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है क्या जो हमें कॉलेज ढूंढ के दे सकती है, जैसे माइटेक्स का नाम सबने सुना होगा, दाद वाइस का नाम सुना होगा जर्मनी के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का ढूंढना, प्लस साथ ही साथ कॉलेज की तरफ से भी कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज के वो क्या बोलते हैं, अरे प्रोग्राम्स। हाँ, एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए आते हैं कि बेसिकली कोई जाना चाह रहा है क्या वहाँ पे, जैसे अभी OIST का आया हुआ था अपने लिए, फिर अभी योशिकावा करके एक है उसका आया हुआ है, कोराना प्रोग्राम एक आया था फॉर रिसर्च स्कॉलर। तो इन सब चीज़ पे भरना, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देना, तो मोस्ट लाइक इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट CPI की होती है, तो 8+ तो काम कर जाएगी, ठीक है, 8+ है तो अच्छी है, 7.5 भी किसी के लिए काम कर जाती है, प्लस LOR है तो है, साथ में आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया है, बस इतना एनफ है, आप रिसर्च इंटर्नशिप कर सकते हैं। इस रिसर्च इंटर्नशिप का आगे बहुत फायदा हो सकता है, जैसे कि अगर किसी को प्लेसमेंट ही लेनी है बीटेक करने के बाद भी किसी कोर कंपनी में, तो रिसर्च इंटर्न किया है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अगर किसी को बाहर आगे जाके पढ़ाई करनी है, लाइक फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अगर करनी है, तो उनके पास क्या है, एक रिसर्च इंटर्नशिप उन्होंने कर रखी है, प्रोजेक्ट BTP वो कर रहे हैं, 2 साल 2 सेमेस्टर उनको मतलब ऐसा पूरा इंडिविजुअली करने का मौका मिलेगा ना प्रोफेसर के साथ, प्लस अपना जो 7th 8th सेमेस्टर में जो कोर्स के लिए BTP है वो भी अलग चीज़ है। तो 2 साल में हो सकता है 1 आध 2 रिसर्च पेपर आप पब्लिश कर सको अपने, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन लेने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करना चाहूँगा, लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं SDE में जाना है और तुम्हारा ब्रांच CSE नहीं है तो CPI इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ CPI होना ही होगा। लाइक अदर देन एलिजिबिलिटी, लाइक 7.5 एलिजिबिलिटी है किसी कंपनी का, वो 7.5 CPI वाले को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, वो 8 9 साढ़े 8 Internal CPI वाले shortlisting। को करेंगे। सो दूसरा है कि प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक डेटा साइंस एंड एल्गोरिदम सब जान ही रहे हैं उस बारे में। एंड सो साइड बाय साइड करते रहना चाहिए, बिकॉज रेगुलर प्रैक्टिस लगता है। एंड इंटर्नशिप्स के लिए DSA ही मेजर है, प्रोजेक्ट कहीं से भर सकते हो, अगर क्लब्स में हो तो ठीक है, नहीं तो कहीं से मिल जाता है, कहीं से कॉपी पेस्ट। सो ये सब है। और प्लेसमेंट्स में लाइक और भी बहुत एक्स्ट्रा कुछ CS कोर फंडामेंटल पूछ सकते हैं। सो एज अ ऑडिट कोर्स ले सकते हैं वो, बिकॉज सेम ही कोर्स पूछते हैं वो, UPS हो गया एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ऑल कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो जिनका लाइक सर्किटल ब्रांचेस के लिए आई गेस 8 CPI इज मोर देन एनफ। बाकी ब्रांचेस में जितना ज़्यादा हो सके बेटर है, बिकॉज ये देखा गया है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत ये करते हैं, लाइक ब्रांच टॉपर्स को प्रेफर करते हैं लोअर ब्रांचेस में। एंड दूसरा पॉइंट कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सैचुरिटी आने लगा है, वो आई डोंट थिंक इंटायरली ट्रू है, बिकॉज सॉफ्टवेयर ऐसा डोमेन है जिसमें बहुत लोग लगते हैं, लाइक छोटा सा काम करने के लिए, बिकॉज बहुत से छोटे छोटे बग्स आते हैं, एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं सॉल्व हो सकता है, बहुत से लोग मिलके काम करते हैं। सो एंड बहुत लोग सोच रहे होंगे AI जो बूम कर रहा है इतना, एंड NVIDIA का CEO बोल दिया कि 5 years में इंग्लिश से रिप्लेस हो जाएगा कोडिंग। सो वो वैसा बात नहीं है, NVIDIA खुद प्लेसमेंट के लिए बनाया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। सो लाइक हाइप क्रिएट करने के लिए उन्होंने बोल दिया है। एंड बिकॉज AI अगर कोई गलती करेगा, बिकॉज गलती तो कर सकता है, तो who would you held responsible for, like जो AI इंजीनियर है या किसको करोगे, कोई आदमी गलती किया उसको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर सकते हो, सो उसका चांसेस कम है। बट सो लाइक बड़े MNCs ये जो रेपिटेटिव टास्क है जो कोई भी कर सकता है उसके लिए AI यूज़ कर रहे हैं, बट जो क्रूशियल टास्क है जिसके लिए वो इन्वेस्ट किया, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो AI नहीं कर सकता अभी। लाइक बहुत से एप्लीकेशन है, बट ये करना है कि तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जो लाइक ChatGPT को प्रॉम्प्ट दो तो ऐसा नहीं कर सकता, कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो, कुछ ऐसा यूनिक वे में सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम जो AI नहीं कर सकता। देन यू हैव द स्किल कि कंपनी चाहेगा तुम्हें। एंड प्लेसमेंट्स तो IITs में अच्छा होता ही है, लाइक 90 80 90%। एंड
इवन लाइक अगर प्लेसमेंट लाइक ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर में जाने का मन है और प्लेसमेंट लाइक किसी और कंपनी में मिल रहा है लाइक किसी और रोल के लिए, तो वहाँ चले जाएं, बिकॉज अगेन फिर मन नहीं लगेगा एंड स्विच करने में और प्रॉब्लम होगा क्योंकि प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस उस डोमेन में नहीं होगा. सो दीज आर द पॉइंट्स. सो डी में CPI और DSA जो Yeah. बहुत फेमस लाइन है हाँ, कि हाँ. CPI रख लो और CP कर लो. CPI NCPI. ओके, थैंक यू भैया. तो देखो ऐसे अगर कोर ब्रांच है और लो CPI है तुम्हारी, तो मेन वही रहता है कि इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट आसान नहीं होता. हम्म, पर अगर मेहनत कर लियो, अगर इंटरव्यू में हो गया तुम्हारा, हम्म, मतलब गलती से नाम आ गया, फिर आसान हो जाता है इंटरव्यू. वही मेरा भी वही था कि जब मैं इंटर्न के लिए तैयारी कर रहा था कि मुझे इतना पता था कि अगर मेरा इंटरव्यू में आ गया नाम, मेरा हो जाएगा इंटर्नशिप, मतलब मेरा लग जाएगा. हम्म. बट अगर नहीं आता तो प्रॉब्लम होता है. सिर्फ Shortlisting is the biggest shortlisting hindrance. is tougher than getting the job. Okay, thanks. Okay, thank you भैया. Time constraints है हमारे पास, so like last question is a very sensitive topic. Some bad news are also there from IITs also. IITs की लाइफ बहुत ज़्यादा अभी कलरफुल होती है. GC होता है, प्लेसमेंट्स हैं, एकेडमिक्स लाइफ है, बट स्टिल देर आर सम कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो थोड़े से स्ट्रेस रहते हैं, जो एकेडमिक्स लोड हैंडल नहीं हो रहा, या बहुत सी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो हाउ विल यू से? और आई गेस इन प्रॉब्लम्स के अंदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि जो यहाँ पे अभी करंटली चलता है. ठीक है, सो रिलेशनशिप्स पर एडवाइस अगर आप में से कोई ऑलरेडी है तो कमिटेड, और अगर सिंगल है तो फिर, क्योंकि IITs इंजीनियरिंग में जनरली जेंडर रेशियो थोड़ा सा रहता है. एंड इन जनरल मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेज कैसे करें. ठीक है, सो इफ देर इज़, अगर आप रिलेशनशिप में एडवाइस नहीं देना चाहते तो हाउ टू मैनेज द मेंटल लाइफ, स्ट्रेस कैसे मैनेज करें. या मुझे लगता है कि जब तक हम क्लासेस में हैं 9 to 5 तब तक ठीक रहता है, लेकिन हमारा वैसे कोई क्लासेस नहीं होती हैं, लेकिन जो 5 to 7 का पीरियड है और टाइम है, उसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है. तो अगर आप जिस जगह पे हो उस जगह को नहीं बदलोगे तो वो रहेगी. तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस या एंजाइटी को रिलीज करने के लिए या फिर उससे दूर भागने के लिए एक ही ऑप्शन होता है, जिस पोजीशन में आप हो उसको छोड़ दो, जिस जगह पे हो उसको छोड़ दो. क्योंकि अगर आप जगह बदलोगे तो आपके थॉट्स बदलेंगे. तो इसीलिए एक्स्ट्रा करिकुलम भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आप चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा ना कर पाओ तो वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. तो डिप्रेशन होना तो आजकल बहुत आम बात है, और क्योंकि हम काफ़ी टाइम जो है सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो हमारे दिमाग में एक आइडियलाइजेशन है, हमें लगता है कि ऐसी लाइफ है, ऐसी होनी चाहिए. तो वो बताने के लिए मुझे लगता है गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि शायद वो मुश्किल भी है, लेकिन वो हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत कम है. तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास, मतलब मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है कि कैसे बेटर कर सकते हैं. ऑन पेपर काफ़ी कुछ किया जा रहा है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, लेकिन वो इन प्रैक्टिकल वो इनफ नहीं है. वो दिख रहा है कि वो इनफ नहीं है. तो उसके लिए जो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ को टारगेट करके ही बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शुरू करनी चाहिए. और स्पेशली जो रिलेशनशिप्स हैं, मतलब इंटीमेट वाले भी नहीं, जो दोस्तों के बीच में भी हैं, उनके ऊपर भी ज़्यादा बात होनी चाहिए कि कैसे आप एक दूसरे के साथ रहकर कैसे ग्रो कर सकते हैं. मतलब हम सब इतनी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सबसे हमारी बात बनती है. ऑब्वियसली विचार अलग अलग होंगे, लेकिन अलग अलग विचार लेकर भी हम कैसे एक साथ रह सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है. और जो आजकल के जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े इसी चीज़ के वजह से पीछे रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक आइडियलाइजेशन है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, फिल्मों में ऐसा होता है. तो उसको लेकर सिर्फ ये जानना कि हमें आइडियल होना ज़रूरी नहीं है, हम हटके हो सकते हैं. सो रिलेशनशिप का जब भी बात आता है वही जेंडर रेशियो पे लाइक बॉटलनेक है वो, क्योंकि यहाँ लाइक 1:4 का रेशियो है. दैट टू इन आवर ईयर, बाकी ईयर्स में और भी खराब होगा. और So, हाँ हाँ
सो सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अदर देन सोशल मीडिया एक मेजर पार्ट है, ये मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, बिकॉज सोशल मीडिया पे यू सी पीपल गेटिंग इनटू रिलेशनशिप, पीपल गोइंग समवेयर, बहुत फ्लैशी लाइफ सबका दिखता है, बट हमें ये सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया पे सब लोग वही शेयर करते हैं जो उनका बेस्ट मोमेंट्स है, तो हमें लगता है उनका लाइफ ही पूरा वैसा है, एंड हम अपने बोरिंग लाइफ को सोच के डिप्रेस होते रहते हैं. सो आई वुड एडवाइस कि रियल में जाके पर्सन से मिलो एंड बात करो, यू वुड सी कि उनको भी बहुत परेशानियां हैं, एंड यू वुड कनेक्ट, एंड जब भी थोड़ा भी ज़्यादा डिप्रेस या प्रेशर लो किसी भी चीज़ का, एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, इंटर्नशिप का प्रेशर हो, तो जोन आउट करना चाहिए, टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, गो होम इफ पॉसिबल, बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट देन यू. ऑफ कोर्स इंटर्नशिप नहीं मिला, बाद में मिल जाएगा, प्लेसमेंट अच्छा मिल जाएगा, एक एग्ज़ाम से और कुछ होता नहीं है. सो एंड फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, जब किसी भी मोमेंट पे फ़ोन करो, रात के 2-3 बजे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत आ जाए रूम पे. सो ये इम्पॉर्टेंट है. एंड रिलेशनशिप, I guess many good relationships I've seen people helping each other grow. बहुत से toxic relationship भी हैं. I guess rather than being in a toxic one, don't be in. सबसे पहले ये जो रिलेशनशिप वर्ड है तो वो हमारे लिए ऐसा जले पे नमक जैसा है, तो उसको रिफ्रेश करते हैं, उसे फ्रेंडशिप और कनेक्शन बोलते हैं. ठीक है, डेफिनेटली ठीक है. तो फ्रेंडशिप सबसे जरूरी है आईआईटी में. ठीक है, यहाँ पे आओ, लेकिन ये है कि अच्छा दोस्त बनाओ. ऐसा भी नहीं है कि जो आपको हमेशा गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, या फिर आपकी मेंटालिटी उसके मेंटालिटी से अलाइन नहीं करती, या फिर आपके जो थॉट्स है उसकी कदर नहीं करता, या फिर आपको अपने एम पर पहुंचने से वो रोक रहा है. तो ऐसा फ्रेंड नहीं, अच्छा फ्रेंड बनाओ, उसके साथ बातचीत करो, उसके साथ हमेशा रिलेशंस अच्छे रखो, उसके साथ मज़े करो, खेलो कूदो, पढ़ाई सब कुछ उनसे शेयर करो, अपनी छोटी से छोटी बातें. स्ट्रेस आ रहा है तो उनको बताओ, अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करो, ताकि कोई भी ऐसा गलत कदम उठाने से पहले हाँ, तो वो बहुत वो सही रास्ता तुमको बताएगा. अगर उसे नहीं भी पता होगा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा तुम्हें सही रास्ता बताने की. सीनियर्स के साथ कनेक्शन बनाओ, वो जो वो झेल चुके हैं, या फिर उनके किसी दोस्त के लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, तो वो बढ़िया से समझा सकते हैं कि कैसे उन्होंने कोप अप किया तो तुम कैसे कोप अप कर सकते हो. ये सारी चीज़ है. बाकी और भी कोई भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी तो दोस्त है हर जगह रहेंगे. जैसे कि मेरा क्या है, अगर मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, मैं घर वालों को उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा. मैं बताता ही नहीं हूँ. कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है मुझे, मैं अपने दोस्तों को बता देता हूँ, वो मुझे कोई ना कोई सोल्यूशंस देते हैं, मैं उन पे काम करता हूँ और सब कुछ सही हो जाता है. तो बस यही है कि दोस्ती बनाओ. ये बात तो बाकी लड़कियों का रिलेशनशिप है तो यार सिंगल्स लोग भी लाइफ में बहुत अच्छा कर लेते हैं. ऐसा कई एग्जांपल है. डेफिनेटली बहुत just बड़े chill है. एग्जांपल्स हैं. लेट्स डू अ रैपिड फायर, क्योंकि टाइम बहुत बचा नहीं है. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट वन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ दिस कंट्री. ठीक है, तो पहला कि अगर आपको भी कहीं घूमने जाना है, ठीक है, द बेस्ट प्लेस आउटसाइड गुवाहाटी, ठीक है, बहुत सारी जगह हैं, कहाँ जाओगे? मैं तो तुरंत शिलोंग चला जाऊंगा, बगल में है. थोड़े 2-3-4 घंटे में पहुंच जाऊंगा. सही है भैया. Zuko Valley. जुको वैली बेस्ट. सेम जुको वैली, बहुत से जुको वैली. इंस्टाग्राम प्लीज देखिए. मैं त्रिपुरा चला जाऊंगा. क्यों भैया? एक जगह गुवाहाटी से बाहर शिलोंग गया तो था तू हमारे साथ अभी भैया. हाफलोंग से पहले एक तुंगजांग पीक है जो मैं वहाँ गया था, तो मुझे लगता है मैं बार-बार जा सकता हूँ वहाँ पे. ओके, सो इन दिस पॉडकास्ट वी ट्राइड कि IITs का हर डोमेन, हर एस्पेक्ट कवर हो सके, बट ऑफ कोर्स टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं. शायद 3-4-5 घंटे भी लग जाएंगे इस पॉडकास्ट को पूरे तरीके से ख़त्म करने में, बट वी शुड एंड दिस. अभी ऑडियंस है हमारे साथ, इफ़ दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, कुछ इंटर IIT क्लब्स के सीनियर्स हैं यहाँ पे, एनी क्वेश्चंस? ओके, सो लेट्स एंड दिस. आई गेस बहुत वैल्यू मिली होगी ऑडियंस को, और जो भी वीडियोस के थ्रू देखेंगे, आई होप कि उन्हें मिले कंट्रीब्यूशन. बाकी IITs की लाइफ कवर अप करने की कोशिश करी है. ऑफ कोर्स 2 घंटे लग गए थे डायरेक्टर को कवर करने में छिछोरे में, तो अभी इतने कम टाइम में कवर करना तो बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली
Thanks to our guests and audience for getting engaged with us. Thanks to all.